نحمده نصلي على رسوله الكريم عاقبة للمتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میرے تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی کی فضل سے، اسی کی اجازت سے ہمیں اس کلاس میں موجود ہیں، اس کلاس سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب القرآن کو سیکھنے سمجھنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یوں ہی بنائے رکھے، جوڑے رکھے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سورہ الانعام جاری ہے ہمارا، اور تقریباً 8 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم 9 رکوع کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج تفسیر کا دن ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا کچھ میسج ہے، کیا کچھ ہمارے لیے سیکھنے کو ہے، یہ ہم بھرپور دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورہ الانعام ہم نے 70 آیت مکمل کر لیے ہیں، اور آج 71 سے دیکھیں گے، ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جسٹ لاسٹ رکوع میں ہم نے کیا دیکھ رہے تھے، وہی ہمارے رسولوں کی بات اور ہمارے کفار یعنی مشرک یہ جو بھی ہیں، ان دونوں کا تعلق کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بتا رہا تھا ان کی نکتہ چینیوں کے لیے، کہ ان کے پاس سے جب وہ کرٹیسائز کرتے ہیں ہمارے دین کو، ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا کرٹیسائز کرتے ہیں، جیسے کہ ہندی میں ہم اس کو نکتہ چینی کہتے ہیں، اگر تم ایسے مجلسوں میں بیٹھو تو کیا کرو، یہ ہم نے لاسٹ رکوع میں دیکھا تھا کہ ایسے اگر مجلسیں اگر تم دیکھو یا پاؤ تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کچھ کریں گے وہ تمام اس کا جو بھی الزام اللہ تعالیٰ ان پر لگائیں گا وہ ہم پر بھی لگائیں گا، یعنی ہم بھی ویسے ہی بنیں گے جیسے وہ مجلس ہے، وہ جو کریں گے ویسے ہم بھی بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ آیتیں جو ہم نے دیکھی تھی اس میں یہی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکلنے کو کہہ رہا ہے، ان کے پاس سے اٹھ جانے کو کہہ رہا ہے۔ اگر بالفرض شیطان ہمیں بھلا بھی دے کہ یہاں پر نکچنی ہو رہی ہے، یہاں پر کرٹیسائز ہو رہا ہے ہمارے دین کا، ہمارے اللہ کے رب کے آیتوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے ہی یاد ہو جائے،
या जैसे ही हमें होश आ जाए तो हमें वहां से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये भी देखा था कि किस तरह से अल्लाह ताला हम हमें यानी उनकी मिसाल पेश करते हुए हमें यानी अल्लाह ताला अलर्ट कर रहा है, हमें नसीहत कर रहा है अल्लाह ताला के हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला ने यही बताया कि वो जो भी कुछ करेंगे लेकिन बचाने वाला क्या है, सिर्फ मैं हूँ। अगर कोई मदद करने वाला है तो वो मैं हूँ, और कोई सिफारिशी भी है तो होगा तो वो मैं ही हूँ। यानी तमाम यानी अल्लाह ताला की यहाँ पर फजीलत बयान हुई है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा कोई नहीं होगा आखिरत में, जहां पर हम पहुंचेंगे हशर के मैदान में, न वहां पर कोई मददगार होंगे, न कोई दोस्त होंगे, न कोई सिफारिशी होंगे हमारे लिए। और ये भी कहा गया कि अगर हम दुनिया की तमाम दौलतें अल्लाह को देकर भी अपनी जान छुड़ा नहीं सकेंगे उस रोज। वो दिन ऐसा होगा कोई माल मत्ता कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक अपनी करनी के वजह से पकड़ा जाएगा। हमने जो दुनिया में करके आए उसकी वजह से हम पकड़े जाएंगे। तो जैसे कि दुनिया में देखें बड़े से बड़े भी जुर्म करके लोग बच जाते हैं, क्यों? उनके पास दूसरे हथियार होते हैं, दूसरे सपोर्ट होते हैं, जैसे कि उनके बहुत सारे सिफारिशी होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल उनका पोजीशन होता है, माल बहुत ज्यादा होता है। तो दुनिया में ये सब चलता है। वो टाइमिंग के लिए बच जाते हैं। यहाँ दुनिया के अंदर जो भी कुछ करते हैं, गुनाह करते हैं, खूनरेजी करते हैं, फितने फसाद करते हैं, लेकिन वो बच सकते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ आखिर आखिर में यही हमें बता रहा है कि वो जगह ऐसी होगी जहां पर अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। न तुम्हारा माल काम आएगा, न वहां पर तुम्हारे कोई सिफारिशी काम आएंगे। तो ये कहते कहते अब हम 71 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखा कुल अनदउ मिन दूनिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह सुब्हाना तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं क्या, कह दीजिए क्या हम पुकारें अल्लाह को छोड़कर उनको, मा ला यनफऊना, जो हमें कोई फायदा पहुंचाते, वाला यदुर्रुना, न कोई नुकसान पहुंचा सकते। यानी हम ऐसों को पुकारें क्या जो हमारा कोई भी फायदा भी नहीं करता और जो नुकसान भी नहीं करता। क्या ऐसों को हम पुकारते हैं? वह नुरद्दु अला आकाबीना, और हम फेर दिए जाएं कहाँ, अला आकाबीना यानी अपने एड़ियों के बल। यानी इतना सब कुछ जानने के बाद अपने अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में हम क्या अपने एड़ियों के बल फिर जाएंगे? इसके बाद के अल्लाह ताला ने इज हदान अल्लाह, अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, फिर भी क्या हम एड़ियों के बल बल फिर जाएंगे? यानी अल्लाह ताला यहाँ पर हमें झंझोड़ रहा है। देखिए क्या, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं क्या हम अल्लाह के सिवा उनको पुकारें जो हमें न नफा दे सकते हैं और ना नुकसान, नंबर एक। दूसरा, क्या हम उल्टे पांव फिर जाएंगे? इसके बाद क्या अल्लाह ने हमें हिदायत ऑलरेडी दे दी है, यानी हमें पता चला है अल्लाह क्या है, ये दुनिया क्या है, तमाम हकीकतें हमें पता चलने के बावजूद हम क्या अपने एड़ियों के बल फिर जाएंगे? अगर ऐसा करेंगे तो हम उस शख्स की तरह हो जाएंगे जिसे शैतानों ने जमीन में भटका दिया है और वो हैरान खड़ा देखता रह गया है। यानी हमारी मिसाल जो इस तरह से करते हैं और अल्लाह की हकीकत को जानने के बावजूद, हिदायत याफ्ता होने के बावजूद अगर हम फिर जाते हैं अपने एड़ियों के बल, तो हमारे लिए एक मिसाल पेश की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसे जैसे शैतान हमें जमीन में भटका देता है, यानी गुमराह कर देता है, और हम क्या हैं कि खड़े हैरान खड़े हैं और कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आती हमें
क्यों? शैतान ने ऑलमोस्ट भटका दिया है हमें। तो हमारी वो मिसाल यहाँ पर बता दी है, हालांकि उसके कुछ साथी इस हिदायत की तरफ बुला रहे हों, यानी कुछ साथी जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा लेकर चलो और मेरा लेकर चलो, अगर मैं किसी को गलत राह पर देखकर मैं पुकार रही हूँ उसको, ये गलत राह है भाई, सही राह पर आ जाओ, इस तरह से अगर मैं पुकार रही हूँ, इधर आ जा, इधर आ जा, लेकिन उनको क्या है, बेशक सिर्फ अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, यानी हमारा बुलाना भी उनको कुछ काम नहीं आएगा। समझ आई बात की यहाँ पर? यानी शैतान इनको ऐसे भटका देता है जमीन के अंदर कि अगर मैं बिलफर्ज बुलाती भी हूं तो उन्हें सुना ही नहीं देगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि असल हिदायत क्या है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है फरमा दीजिए, बेशक सिर्फ अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, यानी मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। आई नो कि आप गलत जा रहे हो, गलत राह पर हो, लेकिन मेरा पुकारना आप कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि वो बंदा चाहता ही नहीं है कि वो हिदायत के रास्ते पर रहे। वो खुद अगर चाहेगा तो अल्लाह कुछ करेगा भी, लेकिन वो खुद नहीं चाहता, और मैं बस पुकार रही हूँ, पुकार रही हूँ। तो अल्लाह कहता है हिदायत का रास्ता दिखाना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम उन्हें सही क्या और गलत क्या बता दो। अब उनके हाल पर छोड़ दो कि वो सही राह चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और अगर मैं उनके दिलों को देख सकता हूं, उनको जांच सकता हूं, तो मैं उन्हें राह हिदायत पर ला सकता हूं, क्योंकि अल्लाह के सिवाय कोई चीज मैंने पावर नहीं रखती कि लोगों को रास्ते पर लेकर आए। तो अल्लाह यही कहता है कि अल्लाह कहता है हमें हुक्म दिया गया है कि हम रब्बुल आलमीन के ताबे फरमा हो जाएं। तो यहाँ पर तफसीर हम देखेंगे, कुफ्र और शिर्क की मजम्मत की गई है सबसे पहले। जो भी लोग कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं आयतों का, उनके लिए यह मजम्मत कर दी गई है। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि मुशरिकों से साफ अल्फाज में कह दो कि हम हरगिज इन बूतों या खुद साख्ता माबूदों को नहीं पुकारेंगे, यानी जो खुदाएं हम बना के रखे हैं दुनिया में, हर अध्ययन में, हर रिलीजन में अलग अलग अल्लाह बना कर रखे हुए इन्होंने, यानी बहुत सारे खुदा बना कर रखे हैं, लेकिन किसने बनाया? इन तमाम खुदाओं को हमने खुद गढ़ा है। ना अल्लाह ने, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई ऐसे खुदा दिखाए या बनाकर दिखाए। लेकिन ये अल्लाह कहता है ये खुद साख्ता खुदा जो है, माबूद जो है, इनको नहीं पुकारे जो नफा दे सकते हैं ना नुकसान, यानी वो खुद के लिए कोई नफा नहीं कर सकते ना नुकसान कर सकते हैं। तो हमारा क्या करेंगे? हम उन्हें पुकारते क्यों हैं? हम उन्हें पुकारते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, राइट? तो अदरवाइज पुकारने का क्या मतलब हुआ? किसी को पुकारते कब पुकारते? हम तब पुकारते जब हमारी कुवत, जो हमारी ताकत है, वो कमजोर होती है, और हमारे से ऊपर बालातर जो हैं, जिनकी कुवत ज्यादा होती है, तो उनको पुकारा जाता है कि हमारी मदद को आओ। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह कहता है तुम जिनको पुकारते हो उनको तो वो खुद की भी मदद नहीं कर सकते, उनकी तो इस्तिताअत ही नहीं है, उनकी तो कोई कुवत ही नहीं है, तो फिर तुम उन्हें क्यों पुकार रहे हो? ठीक है। तो अल्लाह यही कहता है कि तुम खुद साख्ता माबूदों को ना पुकारें जो नफा दे सकते हैं ना नुकसान, क्योंकि इंतहाई बेअक्ली और गुमराही है ऐसा करना। यू नो ये अकल रखने वाले, अकल, सोच, होश, गोश रखने वाले कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। ये नहीं, पहले तो सोचेंगे कि हम जिसको पुकार रहे हैं वो है कौन, उनका पावर क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वरना हम क्यों पुकारेंगे उनको? तो अल्लाह यहाँ पर हमें सोचने की दावत दे रहा है। तो अल्लाह ये यहाँ पर फिर हिदायत याफ्ता लोगों के लिए क्या कह रहा है, देखें। हिदायत के बाद गुमराही की मिसाल कैसी है? अगर कोई हिदायत मिलने के बाद वापस गुमराही की तरफ लौट जाए, होता है ना दुनिया में। इसीलिए हमेशा अल्लाह से क्या
दुआ करनी चाहिए कि हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल रखना मरते दम तक, क्योंकि हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमारी कोई इस्तिताअत नहीं है कि हम वो करें, प्राइड फीलिंग करें कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाली हूँ पक्की, और मैं मरते दम तक मुसलमान ही मरूंगी। नो नेवर। जैसे कि कहते हैं ना, हदीस का जो हम लोग मुताला करते हैं कि को एक पैदा होगा मुसलमान, मरेगा काफिर, राइट, और एक काफर पैदा होगा, मरेगा मुसलमान। तो ये देखिए, ये जो हदीस बता रही है कि वी नेवर नो, ये जो ईमान का दावा करने वालों के लिए है कि हम इसका दावा कभी भी नहीं कर सकते कि पता नहीं कब और किस वक्त हमारा ये ईमान हमारे हाथों से चला जाए। तो इसलिए अल्लाह कहता है क्या, कि हिदायत मिलने के बाद तुम गुमराही की तरफ वापस लौट जाओगे। तो इसकी मिसाल एक शख्स ऐसी है जो सहरा में खो गया, सहरा, डेजर्टेड एरिया, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, जो सहरा में खो गया। फिर इतना ही नहीं, वहां तो बेचारा कंफ्यूज होकर कहाँ का रास्ता, कहाँ जाना, ऊपर से शैतान और उसको गुमराही में डाल देता है, और वसवसे डाल देता है उसको, और इस तरह से शैतान उसको गुमराह कर देता है और मजीद भटका देता है ऐसों को, जो ऑलरेडी भटके उनको और भटका देता है, हालांकि उसके साथी ऐसे सही रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। यानी कोई, जैसे कि अभी मैंने कहा ना अभी अभी, कि मैं बुला रही हूँ, देखो ये सही रास्ता है, यहाँ पर आओ, इस क्लासेस में आओ, इन क्लासेस से जुड़ो, अल्लाह की किताब को समझो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। तो ये, लेकिन वो उलझन में है और सुनने को तैयार नहीं है। यानी ऐसे लोग ये हैं कि इनकी नीयत में खोट है, और इनकी नीयत में खोट है तो अल्लाह भी इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। देखिए, एक इंसान होता है, पूरा नियत होती है कि वो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, लेकिन कभी कभी वो शैतान की वजह से, उसके वसवसों की वजह से राह भटक जाते हैं, लेकिन फिर अगर उनको पुकारा जाता है तो वो रास्ता देख लेते हैं और रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिद्दी, हर धर्मी, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता और ना ही वो सही रास्ते पर आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज भी बताई गई कि लहू असहाबु यदऊनहु इलल हुदा तीना, यानी इन हुदाल्लाहि हुवल हुदा। यानी यहाँ पर अब असल हिदायत क्या है बताया गया, फरमाया कि इन हुदाल्लाहि हुवल हुदा, यानी अल्लाह ही की हिदायत असल हिदायत है। यानी हम में से दुनिया में चाहे कौन भी नबी हो, कौन भी वो वली हो, कोई भी हो, लेकिन जो हिदायत नामा जो है देने का, दावत जो देने की अल्लाह के राह की, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बस में है और हम में से किसी के बस में नहीं है। तो अल्लाह ही की हिदायत क्या है, असल हिदायत है। इसमें इशारा क्या है, किसी और की पैरवी करना, यानी जैसे हम दुनिया में करते हैं ना, वलियों की पैरवी करते हैं, कोई बुजुर्गों की पैरवी करते हैं, कोई आलिमों की पैरवी करते हैं, यानी अपने हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि ये आलिम होंगे, ये बुजुर्ग होंगे, बुजुर्गाने दीन होंगे, लेकिन उनके अकीदे हमें नहीं पता। वाकई दे आर बुजुर्गाने दीन हमें नहीं पता होता, लेकिन उनके पहनावे से, उनके स्टाइल से, उनके वो दिखावे से हम क्या समझते हैं कि यही बुजुर्गाने दीन है। तो अल्लाह कहता है किसी और की पैरवी या गैरुल्लाह से रहनुमाई लेना इंसान को भटका देता है नेचुरली। अभी देखिए, यहाँ पर ये मजलिस जहाँ पर आप लोग सब मौजूद हैं, आपको यहाँ पर कोई शक होना ही नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ पर अपने किसों से, अपने दिल से, अपनी चाहत से कोई चीज बताई नहीं जाती। यहाँ तो बस अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब, उनकी आयतों को समझाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर कोई भटकने का चांस नहीं है आप लोगों का। अगर भटके भी हुए हैं हम में से कोई भी, तो हमें राह दिखाएगा, ये क्लास दिखाएंगी। क्यों? यहाँ पर अल्लाह की किताब को सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है। लेकिन अल्लाह कहता है अगर तुम अल्लाह की किताबों को छोड़कर, अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को छोड़कर अगर रास्ता तलाश करोगे तो तुम्हें रास्ता कभी भी नहीं मिलने वाला।
ये बुजुर्गान दीन जैसे तुम समझते हो, वाकई बुजुर्ग होंगे तो अलग अलग बात है, लेकिन हाउ डू यू नो कि ये बुजुर्गान दीन है? उन्हें तो पहला देखना पड़ेगा आपको कि क्या ये अल्लाह की किताब के साथ चलते हैं अपनी जिंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर चलते हैं ये लोग, कि ये लोग अपने इल्म, इनके पास बहुत इल्म होता है, उनका इल्म देखकर अच्छे अच्छों के क्या बोलते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं, ऐसे अलिम है दुनिया में। और वो अपने आप को, लेकिन हम ऐसों के गिरोह में जब चले जाते हैं तो हम खुद रास्ता भटक जाते हैं। फुल चांसेस के ऐसे गिरोह में जाकर हम फिर उसी को अल्लाह बनाकर बैठा देते हैं। वो जिसके गिरोह में चले गए हैं, जो भी मौलाना जो भी हजरात है, वो उसी को अल्लाह बनाकर बैठ जाते हैं हम लोग, और वो जो उठ बोला तो उठते हैं, बैठ बोले तो बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह यहाँ पर कहता है कि ये इस तरह से रहनुमाई अगर हम ले लेंगे अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को छोड़कर, तो हम भटक सकते हैं, बल्कि 100% भटकने के चांसेस हैं। तो मुसलमान की पहचान क्या है? अल्लाह के सच्चे बंदे वो हों जो सिर्फ उसी के आगे झुकते हैं, किसी और हस्ती के सामने नहीं। अगर हम ये बात दुनिया में अभी हमारे माशरे में देखेंगे, तो हम तो हर अरे गहरे के सामने झुक रहे हैं। कोई पावरफुल आदमी है, उसके पैर पड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती मुसलमानों की बात, नॉर्मली जनरली आप देखें हमारी दुनिया के अंदर, जिसके हाथ में पावर है, जिसके पास जितनी भी हुकूमत है, तो हमारी नजर में वो बड़े होते हैं और फिर हम उनके सामने झुकते हैं। वो उठ बले तो उठते हैं, बैठ बले तो बैठते हैं, ये हमारा है। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि सच्चा मुसलमान, इसकी पहचान क्या होनी चाहिए? वो ये कि वो सच्चे बंदे हों और सिर्फ अपने अल्लाह के सामने झुकते हों और उसी के हुक्म के मुताबिक चलते हैं। यानी हुक्म कौन सा? अल्लाह की किताब कुरान का हुक्म, उसके हिसाब से चलते हैं। और यहाँ वो आमिर ना, क्या कहा गया? वो उमिर ना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, यानी इसका मतलब है हमारा दीन, हमारा इस्लाम मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बंदगी का नाम है। यानी हम जिसको दीन कहते हैं, हम जिसको हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, तो ये क्या है? ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बंदगी का नाम है। बंदगी कौन करता है? देखें, एक गुलाम अपने मालिक की बंदगी करता है, तो हमारा रिश्ता अपने रब के साथ क्या है? वो हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। तो हमारा काम क्या है? दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकना सिवाय मेरे मालिक के। और मेरा मालिक कौन है? मेरा रब करीम है। राइट? तो ये वेरी क्लियर है कि अगर मैं मेरे रब्बुल आलमीन के सामने, उसको छोड़कर किसी और के सामने अगर मैं झुकती हूँ, यानी अल्लाह को जिस तरह से मुझे डरना चाहिए, जिस तरह से अल्लाह के अहकामों को मानना चाहिए, क्या उसी तरीके से मैं दुनिया में किसी के अहकामों को मानती हूँ, दुनिया में किसी इंसान को डरती हूँ, तो फिर आई एम रॉन्ग, मैं मुसलमान नहीं हूँ सिरे से। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर सबक क्या मिला हमें? कि इंसान को अल्लाह के दिए हुए हिदायत के बाद कभी भी बातिल, शिर्क या गुमराही की तरफ नहीं लौटना चाहिए। जो अल्लाह का रास्ता एक बार मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मजबूती से पकड़कर हमें चलना चाहिए। दूसरा ये कि दुनिया में भटकते हुए लोग अगरचे हैरान और परेशान हो, लेकिन अल्लाह के बंदे उन्हें राह हिदायत की तरफ बुलाते रहते हैं। अगर कोई परेशान वाकई दुनिया में घूम रहा है, तो अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं दुनिया में जो बुलाते हैं, ऐसों को पुकारते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। और हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की हिदायत हकीकी है, यानी अल्लाह के अलावा हमें कोई भी हिदायत का रास्ता नहीं दिखा सकता। यही दायमी इबादत है, सॉरी हिदायत है। दायमी यानी हमेशगी वाली, हमेशा रहने वाली हिदायत अगर कोई है तो अल्लाह सुब्हाना ताला की है। तो आगे चलते हैं। व इन वत्तकू, अभी आगे क्या कह रहा है देखें यहाँ पर अल्लाह। और ये हुक्म दिया गया अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि नमाज कायम करो, अल्लाह से डरते रहो। वत्तकू, हु की जमीर जाती है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ।
کہ تم کیا کرو, آرڈر, ہمیں یہاں پر آرڈر مل رہی ہے, تمہیں کیا کرنا ہے, آپ صحیح راستوں پر رہنے کے لیے, ہدایت کے راستوں پر رہنے کے لیے تمہیں اللہ کی نماز قائم کرنی ہے اور اسی سے ڈرنا ہے. وَاتَّقُوهُ, تقا, تقا ڈرنا کس سے, اللہ سے, تمہارے رب سے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور آگے کیا فرمایا گیا, اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیے جائیں گے. الیہ تحشرون, حشرہ, حشرہ یعنی جمع ہونے کی جگہ کو, یعنی جمانے کی جگہ کو حشر بولتے ہیں. حشر مطلب وہ, ہم لوگ کے دماغ میں کیا آتا ہے حشر مطلب, حشر مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹارچر ہے, اس کا حشر کر دیا. ٹارچر نہیں, یہ ایک جگہ جمع ہونے کی جگہ کو یہاں پر حشرون, یعنی وہاں پر لوٹائے جائیں گے, ہم سب اکٹھے کیے جائیں گے. تو اللہ کیا کہتا ہے, تم نماز قائم کرو اور تم ڈرو اس سے, کیونکہ تمہیں اسی کے سامنے جا کر اکٹھا ہونا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو تفسیر کیا ہے, دیکھیں اللہ کی عبادت کا سب سے پہلے حکم دیا گیا, یعنی دو عملی احکامات دیے گئے, احکامات حکم, حکم سے احکامات دو دیے گئے. کون سے, ایک نماز قائم کرنا, اقیم الصلاح یعنی نماز کو وقت پر پڑھنا, مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا. اور یہی ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. یعنی نماز پڑھنا مطلب کیسے ہی بس ابھی آ گئی نماز تو کیا کرتے, بولو بس ایسے وضو کرتے بے ڈھنگے طریقے سے, بے ڈھنگے کپڑے, بے ڈھنگی جگہ, ہم لوگ اتنا غور نہیں کرتے کہ ہم اب نماز کو جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں, ہم نماز کو کھڑے ہیں تو کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں, کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. وی نیور ہم اگر سمجھو کل کو ایک کوئی منسٹر آ رہا ہے اور ہم سے کہا جائے گا کہ تم جا کر منسٹر سے ملو, تو پتہ نہیں ہم کتنی تیاریاں کریں گے, کس طرح سے کپڑے, کون سے کپڑے پہنے, کون سی چپلیں پہنے, کس طرح سے بات کروں گی میں, کیا بات کروں گی میں, ہر چیز کے کیا کروں گی, پریکٹس کروں گی. ارے یہ دنیا کے آلتو فالتو لوگوں کے سامنے ہماری ایسی حشر ہو جاتی ہے, ان کے سامنے کھڑے رہنے کو ڈرتے ہم جا کر. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا سمجھا ہوا ہے, اتنا کیجول کیوں لے سکتے ہیں, اتنا ہلکا ہم کیوں لے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. یعنی ہماری حالت کیا نمازوں میں ویسی ہوتی ہے جیسی ہونی چاہیے. دل کی حالت دیکھیں, کیفیت دیکھیں, غور کریں اپنی کیفیت کو, اپنے دل اور دماغ کی کیفیت, اپنے کپڑوں کی کیفیت, اپنی زمین جہاں پر ہم اب نماز کو قائم کرنے والے ہیں اس کی کیفیت. تو یہ خشوع اور خضوع کیسے آئے, کہتے ہیں نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے, ورنہ وہ پوچھا لگاتے نا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گا, وہ نماز کو ہمارے منہ پر دے کر ماریں گا. وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن قیامت کے دن وہ ہمیں سب حشر نظر آئیں گا. تو ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کے لیے کہتا ہے, جو کیسے ہونا چاہیے, مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ایک, اور دوسرا تقوی اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی تقوی کیا, اللہ کا خوف ہونا چاہیے دل میں, کہ اس کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے, اور ہر عمل میں اس کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عمل میرا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. So we should be very very careful. ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہے, اپنی اور دیکھنا ہے, غور فکر کرنا ہے اپنی طرف. اور پھر اللہ کہتا ہے یہ دو چیزوں کے بعد, اللہ کی نماز اور اللہ سے ڈرنے کے بعد, اللہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہی آؤ گے, تمہیں اور کہیں نہیں جانا, تمہارا حشر میرے سامنے ہونے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو اسی کی طرف تم سب کو جمع کیے جائے گا. یہ قیامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, جہاں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ یاد دہانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ.
تو यहाँ पर देखें अल्लाह ताला याद दहानी कर रहा है हमारी कि हमें सबको अल्लाह के सामने जाकर जमा होना है। तो इलैहि तुहशरून। आगे चलते हैं। वहुवल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द बिल हक़ व यौम यक़ूलु कुन फयकून। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर देखें अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पर, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया। हक के साथ यानी जो कुछ भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा फरमाया है, जितनी कायनात बनाई है अल्लाह सुब्हाना ताला ने, ये सब हक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद कायम की हुई है। ये हम इंसानों ने कायम नहीं की हुई है। तो ये हक है, इसमें कोई झूठ बात नहीं, कोई फितना नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये तमाम चीजें हक हैं जो जमीन और आसमानों में पैदा किया अल्लाह सुब्हाना ताला ने। और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो वो हो जाएगा। यानी अल्लाह को कोई चीज तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है, बस कह देगा अल्लाह कुन फायकून, हो जा तो फिर वो हो जाएगा। तो इसका फरमान क्या है? हक है, ये चीज हक है, ये सच है, और इसी की बादशाही होगी। यानी उस दिन क्या, अब दुनिया में हजारों लाखों बादशाह हैं, हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा चल रहा है ना दुनिया के अंदर आज। वो बोल रहा है अमेरिका वाला मैं बड़ा, वो रशिया वाला बोल रहा है मैं बड़ा, फिर वहां से उठ के इंडियन बोल रहा है कि मैं बड़ा, हाँ, फिर वहां पर अरब लोग बोल रहे हैं हम बड़े। इस तरह से हर एक देश से उठ के बोल रहे हैं कि हम बड़े हम बड़े। लेकिन असल में अल्लाह ने इन्हें छूट दी है, भाई तुम लोग बड़े हो इस दुनिया में तो बड़े रहो, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जहां पर सिर्फ मैं बादशाह हूंगा, फिर तुम्हारी हकीकत कुछ भी उस दिन नहीं रहेगी। इसका फरमान हक है और इसी की बादशाही होगी। जिस दिन सुर फूका जाएगा वो हर छिपी और जाहिर चीज को जानने वाला है, और वही हिकमत वाला और खूब बाखबर है। तो यहाँ पर देखें तखलीक कायनात, कायनात की तखलीक के बारे में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बेमकसद पैदा नहीं किया, यानी हक और हिकमत के साथ पैदा किया। हर चीज का एक मकसद और निजाम है। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ भी बड़ी बड़ी बात तो है ही है, छोटे सा जर्रा भी अगर अल्लाह ने दुनिया में अगर पैदा किया हुआ है ना, तो उसके पीछे हिकमत हिकमत है, पर्पस, मकसद। यानी कोई भी चीज यूं ही बनाकर छोड़ी नहीं अल्लाह ने। हर एक चीज की हिकमत है। जो कुछ हम जानते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के पास हर चीज का इल्म है। अल्लाह नोज, जो पत्ता गिरता है लेकिन अल्लाह को पता चलता है। यानी दुनिया का जस्ट इमेजिन, यहाँ तो बड़ा पत्ता है, अल्लाह तो जर्रा जानता है, जर्रा, वी इवन कांट सी, हमारे नेकेड आई से हम देख भी नहीं सकते, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो जर्रा उड़कर कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये अल्लाह की यहाँ पर ताकत और कुव्वत बताई जा रही है, उसकी अजमत बताई जा रही है, और हर चीज के पीछे उसका मकसद और इसका निजाम होता है। फिर कुदरत कामला देखिए, जब अल्लाह कहेगा कि कुन यानी हो जा, तो वो चीज फौरन हो जाती है। और ये अल्लाह की क्या है? खल्कियत और कामिल इख्तियार की दलील है कि वो सिर्फ कुन कहता है, हो जाओ, बल्कि तो हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की यहाँ पर पावर पता चलता है। और कोई चीज है जिसको हम बता सकते हैं कि वो इतना पावरफुल है? तो अल्लाह को छोड़कर ये कोई भी जात, कोई भी ताकत हम दिखा नहीं सकते। फिर अल्लाह ने वहां पर कयामत का ऐलान कर दिया, यौम यनफखु फिस्सूर, जब कयामत के दिन सूर फूका जाएगा तो क्या होगा? सब इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वो दिन अल्लाह के बादशाही की अदालत का दिन होगा। हम सब अल्लाह की अदालत में मौजूद हो जाएंगे, और अल्लाह ताला को जाहिर और बातिन, छिपी और खुली हर चीज का इल्म है। कोई चीज इससे छुपी नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला की जात और सिफात का मामला पेश किया गया है। अस्मा सिफात आखिर में आए हैं क्या?
वहुव अल हकीम उल खबीर, यानी हकीम हिकमत वाला, यानी कोई काम बे मकसद पैदा नहीं किया, यानी देर इज अ हिकमत बिहाइंड इट। और खैर बाखबर, यानी बंदों के दिलों में उठने वाले लहर को भी अल्लाह सुनता है। वो करने का क्या करता है क्या नहीं, नहीं दिल में भी क्या उठता है, क्या बातें सोचता है, हर चीज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला को इल्म है। तो यहाँ पर सबक क्या मिल रहा है हमें 73 में, कि कायनात की तख्लीक सबब नहीं बल्कि एक मकसद के तहत है, यानी देयर इज अ पर्पस बिहाइंड ऑल दिस यूनिवर्स। तो जो कुछ हम जानते हैं इल्म की वजह से, और जो कुछ हमारी आंखें देख रही है, इसके पीछे एक अल्लाह का मकसद है बनाने का। अल्लाह की कुदरत इतनी है कि सिर्फ कुन कहने से वो वजूद में आ जाती है वो चीज। और कयामत के दिन अल्लाह की बादशाही होगी और वही बादशाह होगा और अदल इंसाफ वही करने वाला है। और हमें अल्लाह से क्या है, डर कर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि वो जाहिर और बातिन, देखिए हम में से कोई भी कितना भी अलर्ट रहेगा तो हम वही चीजें देखते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं, राइट। अदरवाइज अगर कोई छुप कर कुछ करता है तो हमें नहीं पता होता क्या है। तो अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है, बल्कि वो जाहिर और बातिन, यानी जो नजर आता है और जो कुछ नजर नहीं आता इंसान का, सब कुछ वो देखता है। तो आगे चलते हैं हम 74 में। वईद क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा। तो यहाँ पर देखें एक मोड़ ले रहा है, कुरान की आयतें मोड़ ले रही हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये मुशरिक, ये कुफ्फार मक्का, इनकी बातें देख रहे थे, ये यहूद नसारा इनकी बातें देख रहे थे। अभी यहाँ पर एक मोड़ आया है, और किसका मोड़ है यहाँ पर देखें। और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप अजर से कहा कि आप बुतों को माबूद बनाते हैं, बेशक मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तौहीद का ऐलान यहाँ पर हुआ है। देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, देखें क़ाल इब्राहिम लिअबी आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिया। असनाम यानी सनम, बुत, असनाम प्लूरल फॉर्म, मैनी बुत। तो यहाँ पर अल्लाह कहता है तुमने इन पत्थरों को, इन मूर्तियों को खुदा बना रखा है। तो यहाँ पर पता चलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा, अकीदा तौहीद पता चलता है, वननेस। उनकी उनका अकीदा क्या था, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। तो यहाँ पर अकीदा तौहीद का ऐलान किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद का यहाँ पर आगाज है। उन्होंने सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार यानी अपने बाप को, जिसका नाम क्या था, अजर था, जो यहाँ पर आया है, देखें अजर, अजर उनके